ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધાની તબિયત સારી હશે એવી હું અભ્યર્થના કરું છું. ફરી એકવાર આપણે નવા વર્ષમાં 2021ના વિડીયોમાં આપણે પ્રથમવાર મળીએ છીએ હિન્દી વિષયમાં. તમે લોકો મારા માટે નવા છો, કારણ કે ગઈ સાલ પણ આપણે શિક્ષણ અર્થે મળવાનું બહુ ઓછું થયું હતું. ત્યાર પછી આપણે કોરોનાને લીધે ફરીવાર મળી શક્યા નથી. તમારો પરિચય મને જ્યારે મળશે ત્યારે મળશે જ, પણ અત્યારે હું મારો પરિચય આપું તો હું હિન્દી વિષય અત્યારે લેવાની છું. 9મા ધોરણની અંદર સોશિયલ સાયન્સના વિડીયો પણ હું લેવાની છું અને ઈચ્છું છું કે તમે મારા વિડીયોને બરાબર ધ્યાનથી સાંભળો અને સમજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોમાં થોડુંક સંભળાય ના સંભળાય આવું બનશે જ, કેમ કે આપણે તો એક ક્લાસની અંદર, વર્ગની અંદર આપણે શૂટિંગ કરતા હોય કે વિડીયો લેતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે પંખાના અવાજ આવે, આજુબાજુથી અવાજ આવે, આ બધું બની શકે છે. છતાં પણ તમારું ધ્યાન જો વિડીયો સાંભળવામાં જ હશે ને તો હું નથી માનતી કે તમને બીજો કોઈ અવાજ મળે. સોશિયલ સાયન્સના વિડીયો આજે મેં મૂકી દીધા છે. જેટલા લોકોને વિડીયો મળ્યા છે તો એને બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. હિન્દી વિષય બહુ સહેલો વિષય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ 10મા ધોરણની અંદર હિન્દી વિષય હોતો નથી, એટલે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ચિંતા એટલી જ કરવાની છે કે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે. ગુજરાતી માતૃભાષા છે, અંગ્રેજી વિદેશી ભાષા છે, તો હિન્દી રાજભાષા છે. 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસને આપણા દેશમાં આ ભાષાને રાજકીય ભાષા તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલી છે. એટલા માટે હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા કહે છે. કહી શકાય એટલી સરળ ભાષા છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતીમાં પણ બોલવું હોય ને તો પણ બહુ સમજીને શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો પડે છે, તો જ એને ગુજરાતી ભાષા બોલ્યા કહેવાય છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણા વાણી અને વ્યવહારમાં ગુજરાતી ભાષા એ બહુ બોલીએ તો છીએ જ, પણ એ શુદ્ધ ગુજરાતી નથી. તેવી રીતે હિન્દી ભાષાને પણ જો આપણે ખરેખર દિલથી સ્વીકારીએ તો આ ભાષા એ આપણે શુદ્ધ ભાષા તરીકે બોલી શકીએ અને સ્વીકારી શકીએ. આપણે જેમ ગુજરાતી બધાને એમ થાય છે કે મને આવડે છે પણ નથી આવડતું, એ ભાષા નથી, એ રગ ભાષા છે, જેનો તમે ગમે તે રીતે ઉપયોગ કરો છો. જેમ આપણે વતનની ભાષાનો ઉપયોગ કરતા જઈએ છીએ તેવી રીતે એ ભાષા ગણાય છે. પણ જ્યારે ગુજરાતી ભાષામાં પુસ્તક વાંચીએ છીએ ત્યારે એના જે શુદ્ધ શબ્દોનો પ્રયોગ થયેલો હોય છે તે આપણી ગુજરાતી ભાષા. એવી રીતે હિન્દી ભાષાને પણ આપણે દિલથી સ્વીકારીએ. આ ભાષા આપણે લોઅર લેવલની ભાષા ગણાય છે, હાઈ લેવલની નહીં. હાઈ લેવલની ભાષાના શબ્દો અઘરા હોય છે, જે ફક્ત હિન્દી ભાષીઓ જ વધુ સમજી શકે છે. અને એટલા માટે જ આપણી ગવર્મેન્ટે ઘણી બધી કંપનીઓમાં, સંસ્થાઓમાં, બેંકોમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ને સ્વીકારેલી છે. તમે બેંકમાં જજો એટલે ખ્યાલ આવશે કે જનરલી બધા હિન્દીમાં વાત કરતા હશે. ફોર્મ પણ હિન્દી કમ અંગ્રેજીમાં છે.
બહુ સુંદર ભાષા છે હિન્દી ભાષા, બહુ માનવાચક ભાષા છે, તિરસ્કૃત ભાષા નથી, બરાબર? તો આપણે એને સ્વીકારીએ અને શીખવા માટે પણ જીવનમાં આગળ હિન્દીમાં આપણે કોઈની સાથે બહુ સંપૂર્ણ હિન્દી ભાષામાં વાત કરી શકીએ તેવું આપણે શીખવું જોઈએ. હવે આજે સૌ પ્રથમ પહેલા સત્રનો વિડીયો છે, થોડીક આ સમજ મેં એટલા માટે આપી કે તમે થોડુંક એ ભાષાને સમજી શકો. આજે એ ભાષાને સમજવા માટે કેટલીક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીએ. હિન્દી ભાષા બોલીએ તો છીએ પણ કેટલીક ખોટી બોલીએ છીએ ને એ પણ આપણે બહુ સમજતા નથી. તો આપણે એક ટ્રાય કરીએ, એક પ્રતિજ્ઞા, જેને આપણે હિન્દીમાં પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રતિજ્ઞા. પ્રતિજ્ઞા લખીએ છીએ પણ હિન્દીમાં ઉચ્ચાર એને પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. બરાબર? તો આપણે પ્રતિજ્ઞા બોલીએ, ગુજરાતીમાં બોલું છું એટલે, પણ हिंदीમાં કહું तो प्रतिज्ञा पत्र पढ़िए. मैं अभी तो पढ़ती हूँ, आपको बराबर ध्यान से सुनना है, फिर हम देखते हैं आगे बढ़े या ना बढ़े, हिंदी विषय में कैसे क्या करें ये भी देखेंगे. જેમ આપણે રોજ પ્રાર્થના પછી પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ, હાથ સીધો રાખીએ છીએ અને બરાબર ખભાના લેવલમાં રાખીએ છીએ. તમે જાણો છો, બધું શીખવાનું નથી હોતું, છતાં પણ તમે ધ્યાન રાખો તો વધારે સારું છે. હિન્દીમાં આપણે વાંચીએ છીએ એટલે એનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે વાંચવું છે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો. प्रतिज्ञा पत्र. भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं. मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है. मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा. मैं अपने माता पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा एवं हर एक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ रहूँगा. उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है. जय हिंद, जय भारत. प्रतिज्ञा बोलता अपना शरीर में जो रूवाड़ा ऊभा न थई जाए, देश प्रत्ये तमने कोई प्रेम न होय तो ये गलत कहेवाय. अब हम पढ़ेंगे आगे मूलभूत कर्तव्य. मूलभूत कर्तव्य क्या है ये भी मेरे साथ साथ आप ध्यान देते जाइएगा. बुक आपके हाथ में होनी चाहिए वीडियो सुनते समय. देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है. विद्यार्थी मित्रों, कर्तव्यों के साथ आगे बढ़े, यही मेरी अभ्यर्थना है. संविधान का पालन करें. संविधान यानी बंधारण. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें.
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान के लिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर उठने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे और उपलब्धियां प्राप्त करता रहे। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक और प्रतिपाल्य के लिए यथास्थित शिक्षा के अवसर प्रदान करें। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास बहुत जरूरी है। खाली काव्य के पाठ समझी जवाबों लखी देवा, मार्क मेळवी लेवा અને માર્કશીટ મળી જાય, આગળ જતાં કોલેજની ડિગ્રી મળી જાય એટલું જરૂરી નથી। એટલા માટે ભણતર સાથે ઘડતર હોવું જોઈએ। જે તમે સમજો છો કાવ્ય કે પાઠ, તેને અનુસરવાનું છે, ગ્રહણ કરવાનું છે, આપણા જીવનમાં એને લાવવાનું છે। એટલા માટે જ આપણે અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ। એટલે ધ્યાન હંમેશા અભ્યાસની સાથે સાથે પોતાના જીવનમાં તેનો પ્રયોગ થાય તેવું આપણે કરવાનું છે। એમ તો આપણા દેશમાં ઘણા બધા લોકો શિક્ષિત છે, પણ અનપઢ શિક્ષિત કહેવાય, અભણ શિક્ષિત। કારણ કે એ લોકો ફક્ત શિક્ષણનું જ જ્ઞાન લઈ લે છે, પછી જે જીવન ઘડતર માટેનું જ્ઞાન છે તેને એ સ્વીકારતા નથી। બરાબર? તો પાઠ અને કવિતાઓ જે આપણને શીખવે છે, શીખ આપે છે, બોધ આપે છે, અનુસરવાનું કહેવામાં આવે છે, નીતિ નિયમોનું, આદર્શોનું પાલન કરવાનું હોય છે, તો આપણે આપણા જીવનમાં એ જગ્યાએ પાલન કરવાનું આવે કરવાનું રહેશે। આપણા જીવનને સદ્ધર, શુદ્ધ, આદર્શ અને નીતિ પાલન કરવાનું છે। એટલા માટે આપણે જીવનને ઉચ્ચતર ક્ષેત્ર પર લઈ જવા માટે આપણે હંમેશા કટિબદ્ધ રહીશું। પહેલી કવિતા આપણે આગળ વધશું તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનુક્રમણિકા પ્રમાણે અને અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે આપણે હિન્દી વિષયમાં આગળ વધતા રહીશું, તેનું તમે ધ્યાન રાખશો। એ પ્રમાણે તમારે નોટબુક બનાવવાની છે, જે લેસન આપું તે એમાં નોંધવાનું છે, પાકી નોટમાં જ અને તારીખ સાથે। તો પહેલું કાવ્ય છે बापट। कवि का नाम है वसंत बापट। पहले हम कवि का परिचय देंगे, जो जरूरी है इतना ही परिचय आएगा। श्री वसंत बापट बड़े ख्यातनाम कवि हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि थी, जहां उन्होंने काम किया है।
राष्ट्र सेवा दल के अग्रणी थे। देखते हैं ना आप लोग कि कवि होने के बावजूद, भाषा के स्टूडेंट होने के बावजूद भी वे देश के और राष्ट्र के कामों में जुड़े रहते हैं। आप उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज का जागरण और मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। उनकी कविताएं हैं सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं दिशा, तेजसी, ये उनकी रचनाएं हैं। आराधना कविता यानी प्रार्थना, आराधना यानी प्रार्थना। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, जानते हो ना कैसी करते हैं प्रार्थना। अगर प्रार्थना गाते हैं तो गाते ही हैं, उनका कोई अर्थ अगर आपकी समझ में आता है, उनको अपने हृदय से भगवान की प्रार्थना में जोड़ते हैं तो प्रार्थना का सही अर्थ रहता है। प्रार्थना हमें शांति देती है, सुख देती है, उच्च भाव देती है और हमेशा भगवान के निकट रहने का हमें चांस देती है, मौका देती है। जब जब कोई कविता हम बड़े हृदय के साथ पढ़ते हैं तो ये कविता, ये शब्द, ये उनके भाव हमारे समझ में आता है और हम बार बार उनसे गुनगुनाया करते हैं। कविताएं हो या प्रार्थना के स्वरूप में हो, हमेशा प्रेरणादायी होते हैं, अपने जीवन में को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में भी कवि वसंत बापट ने प्रार्थना द्वारा हमें प्रेरणा दी है। प्रार्थना में क्या है, उनके शब्दों में क्या है, ये पहले देख लेते हैं और ताकि उस कविता को समझ में आ जाए कि ये कविता क्या है और उसमें क्या अर्थ दिया है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम में सत्य, शिव में भगवान, शिव, सुंदरम यानी सुंदर भावना के साथ दीन दुखियों के रक्षा करना कविता के भाव है। गरीबों की रक्षा करना, दुखियों का साथ देना, मानवता की उपासना करना। उपासना यानी प्रार्थना। भेदभावों को दूर करना, बैर से मुक्त हो जाना, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, बहुत बड़ी उच्च भावना है। ऐसे वैश्विक मूल्य, उच्च मूल्यों के साथ कवि वसंत बापट ने हमें यह कविता समझाई है। तो कविता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगल की नित्य हो आराधना। कविता को, प्रार्थना को आप जैसे गाना चाहे गा सकते हैं, समझना जरूरी है। देह मंदिर चित्त मंदिर, देह यानी शरीर। अपने नोटबुक में भी शब्द का अर्थ लिखते जाइएगा। देह, शरीर, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। प्रस्तुत कविता में कवि वसंत बापट
कि यही प्रार्थना है कि सभी लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें। एक ही प्रार्थना, देह को मंदिर मानो, मतलब तन मन दोनों मंदिर है, क्योंकि ये सच्चाई के साथ प्रार्थना की जाए तो ये प्रार्थना होती है। इसीलिए हमें देह और चित्त के मन, चित्त के मन, देह और चित्त, शरीर और शरीर के अंदर जो मन है, शुद्ध भाव से प्रार्थना की जाए तो कवि कहते हैं कि हम सभी लोग सच्चाई के रास्ते पर चले। सत्य सुंदर, सत्य यानी सच्चाई, सुंदर भाव और मांगल्य के मार्ग पर सच्चाई के साथ अच्छे कार्य करें, सुंदर भावना के साथ उसके मन में सच्चे सच्चे विचार आए। नित्य वो आराधना, नित्य के रोज प्रार्थना हमारे मन में रोज होनी चाहिए। नित्य रोज हमेशा। पहली पंक्ति आपकी समझ में आ गई होगी, दोबारा बोलती हूँ मैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित हो आराधना। आराधना એટલે प्रार्थना। प्रस्तुत कविता में श्री बसंत बापट की यही प्रार्थना है कि सभी लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, अच्छे कार्य करें, सत्य शिवम और सुंदर की भावना के साथ उनके मन में सच्चे सच्चे विचार आए। दूसरी पंक्तियां है, दुखियारों का दुख जय यही है मनोकामना, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना। क्या कहती है ये पंक्तियां, ये प्रार्थना? दुखियारों का दुख दूर करें, दुखियारों का दुख दूर करें, ये कविता की और कवि की मनोकामना है। मनोकामना यानी इच्छा। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, परस्पर प्रेम करें। दुखियारों का दुख दूर कैसे होगा? दुखियारों का दुख कैसे दूर होगा? दिन दुखियों को हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? बोलो। उनसे प्रेम से बात करें, प्यार से व्यवहार करें। यही बात दुखियारों के दुख दूर कर देने वाली है। फिर से समझिए, दुखियारों को हम तिरस्कृत करेंगे तो उनको और दुख बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्यार करना है, प्रेम से व्यवहार करना है, ताकि उनका दुख दूर हो जाए, कम हो जाए। वेदना को परख पाए, जो दिन दुखी है उनको क्या वेदना है? वेदना यानी दुख, पीड़ित किस बात से पीड़ित है वे जाने और उनका दुख दूर करने की कोशिश करें तो हम उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। ગુજરાતીમાં એક પંક્તિ છે ને, એક ગાંધીજીની પ્રાર્થના, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાई जाने। हम एक दूसरों के जीवन से उनकी पीड़ा का अनुभव करें, जाने और दूर करने का प्रयास करें। बराबर। वेदना को परख पाए, परखना यानी जानना, संवेदना, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को, उनकी सहानुभूति को। वेदना संवेदना यानी लागणी, सहानुभूति, उनको पहचाने और
उनकी वेदना को दूर करने का प्रयास करें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधन। दुर्बल जो अशक्त है, कमजोर है, उनकी रक्षा करें, उनकी पौरुष की साधना करें, उनकी सहयोग की भावना हो आपके मन में, उनके प्रति दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। हमारे अंदर जो पौरुष है, जो मानवता है, वे दुर्बलों के लिए रक्षा और उनका साहस बन सकता है। उसके अंदर ऐसी शक्ति भरनी है, दुर्बल नहीं बनाना है, दुर्बल को शक्तिशाली बनाना है। तो कैसे बनेंगे? सोचिए कैसे बनेंगे? अपने शब्दों से, अपने भाव से, अपनी सहानुभूति से उनके अंदर विश्वास भरे, शक्ति भरे, साहस भरे, तो अपने आप वे अपने काम में लग जाएगा, उनके दुख दूर हो जाएंगे, उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। यही हमें करना है अपनी मानवता के लिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए। सभी के जीवन में नव तेज हो। कैसी शक्ति भरेंगे? कैसी शक्ति भरेंगे? ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा प्यार करेंगे, ऐसी वाणी और शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि उनके जीवन में नया तेज आ जाए। क्या आए? नई चेतना आए, जीवन जीने की लगन रहे। कभी कभी देखते हो बहुत दुख होता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मरने को तड़पते हैं। तो उनको जीने की आशा बनानी है और यही आशा उनको जीवन में आगे ले जाती है। यही काम हमें करते रहना है। इसीलिए कवि हमें क्या कहते हैं कि हम सभी के जीवन में नई चेतना भर दें, नव चेतना, यानी नया तेज, फिर से जीने की तमन्ना हो जाए उस आदमी को, उस व्यक्ति को। जैसे हमारे कई साथी होते हैं, मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, कई बातों के लिए दुखी होते हैं, तो कभी कभी हमने ये काम कर भी लिया होता है कि आपको क्या है, क्या दुख है, क्या समस्या है। तो समस्या अगर हम तक पहुंचाते हैं, हमें कह देते हैं, तो हम उनका उपाय बताते हैं। अगर उनकी ज़बान पर ये बात आ जाती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, अगर इतना दुख हो जाता है, तो हम उनको आत्महत्या से दूर कैसे कर सकते हैं? प्रेम से, प्यार से, दया से, सहानुभूति से हम उनकी पीड़ा को जानेंगे तो कम करने की कोशिश करें, तो उसको भी उसके जीवन में नई चेतना आ जाती है, जीने के लिए भी और तैयार हो जाते हैं। हृदय से सुंदर भावनाएं हो। हमारे हृदय की सुंदर भावनाएं उनको दे, उन तक पहुँचाए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भाव। अंतरंग के हृदय, हृदय, हमारे हृदय में उनके प्रति सुंदर भावनाएं हो। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। मन में सुंदर भावनाएं हो, सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। शौर्य धैर्य पावे। हमारे प्रयत्न से, हमारी सुंदर भावना से उनके हृदय में शौर्य और धैर्य बढ़ जाए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अब कविता के अंतिम पंक्तियों तरफ जाएंगे। भेद सभी अस्त होए। विद्यार्थी मित्रों,
आप देखते रहते हो कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जिनसे हम मिलते जुलते हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति कहीं ना कहीं भेद रहता है, भेदभाव रहता है। धर्म के लिए क्या बोलते हैं उसको, धर्म के लिए, जाति के लिए, लिंग के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ईर्ष्या भाव रहता है, भेदभाव रहता है। ये सारे भेदभाव हम मनुष्य होने के नाते छोड़ देंगे तो ये हो सकता है। क्या हो सकता है? सभी भेदभाव दूर हो सकते हैं, बैर मिट सकता है। बैर और वासना यानी लोभ। फिर से ये पंक्तियाँ देखें, वेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानवता की कल्पना क्या है? हम क्या सोचते हैं कि कहीं पर भेदभाव न हो, कहीं पर बैर ईर्षा न हो, ठीक है, ये समाप्त हो जाए, यही प्रार्थना। और सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, सारे भेदभाव नष्ट हो जाए और लोग मानवता से व्यवहार करें। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। अब अंतिम पंक्ति है, मुक्त हम सभी चाहे एक ही बंधुता की कामना, अभ्यर्थना, कल्पना, ये सब अलग अलग शब्द हैं पर भाव एक है। फिर से उन पंक्ति को ले, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। आगे से ले तो क्या है, वेद सभी अस्त हुए, बैर और वासना मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की या कामना। बैर भाव और बुराइयाँ दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं अपने कविता में, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र तथा बंधुत्व की कामना करें। बहुत ही कम शब्दों में कवि ने छोटी सी कविता के जरिए हमारे हृदय के अंदर मनुष्यता जगाई है, मानवता जगाई है, दया का भाव जगाया है, संवेदना जगाई है। हम सब के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरों के हृदय की पीड़ा को समझें और नई चेतना प्राप्त करें। हमारे सुंदर भावों के साथ हम स्वतंत्रता और बंधुता की रक्षा करें। कवि सामाजिक कवि हैं और राष्ट्रीय भी, इसीलिए समाज का कल्याण करना, राष्ट्र का उद्धार करना, ये उनकी कविता के सबक है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कविता समाप्त होती है। अगर दोबारा न समझाए तो बार बार वीडियो को पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कविता यहाँ समाप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, आपको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य को अपने फाइल नोट में ही लिखना है, तारीख के साथ लिखना है। 3-4 सवाल हैं जो आपके सामने में लिखती हूँ।
प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं? कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं? दूसरा सवाल, अगर आप मेरे साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर सुनाई अच्छी तरह सुनाई देता है तो। दूसरा प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि किसकी मनोकामना तीसरा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? चौथा सवाल है, कवि दुर्बलों की रक्षा के लिए क्या चाहते हैं? कवि दुर्बलों की रक्षा के लिए क्या चाहते हैं? दो कार्य हैं। ठीक है, તો આજના વિડીયો માટે હું રજા લઉં છું. કાર્ય આપણે પૂર્ણ કરીશું. જૂન મહિનાના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે અભ્યાસક્રમ ચાલવાનો છે અને તે માટે તમારે સૌએ તૈયાર રહેવાનું છે.